सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलो। Priyanka ma'am, shall we start? Yes, Vicky sir. Okay. So we can start now. Okay, ma'am. Okay. So once again, good afternoon. Namaskar, ma'am. Once again, good afternoon and welcome to Alka Arya, ma'am, and to all the participants. We, on the behalf of Sage Group and SIRT Pharmacy, I would like to welcome our first speaker of today's session, Mrs. Alka Arya, ma'am. Before starting, I would like to give a brief introduction again about the ma'am, because some audience and some participants have not attended the inauguration function. So I would like to give a brief introduction about ma'am once again. Mrs. Alka Arya, ma'am, did her bachelor degree in architecture from IPS Academy, Indore, and was inspired by her college principal, Shri G.B. Kulkarni, sir. After receiving a silver medal in her architecture, she pursued master's degree in regional planning from School of Planning and Architecture, Delhi, in the year 2006 with distinction. Soon after the university, ma'am has joined Scott Wilson and then Cushman and Wakefield, which are the eminent real estate Gurgaon-based multinational companies. During her tenure as an associate consultant in the firm, ma'am has nominated to represent India in India-China Technical Exchange Program at Shanghai in year 2007 and learned the establishment processes of special economic zones as India was witnessing global competition in the same. With 4 years of corporate experience, ma'am has joined Delhi Development Authority at Delhi Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, one of the biggest planning and development government authority in India, and Globe as a Class 1 officer. Here, and currently, ma'am is there at DDA as Director Planning and Handling Charge of Preparation of Master Plan for Delhi 2041. She is married to Dr. Mithilesh Kumar, a senior cardiologist, super specialty heart doctor at JP Hospital, Noida, and have 2 little sweet kids. As an born in an Arya Samaj family, ma'am is inspired by the scientific Vedic civilization and practicing yoga since last 12 years. She performs weekly Vedic yajna sincerely, even every Sunday, for purification of self-spirit and the surroundings. With deep faith in Indian Vedic science, ma'am strongly believes that India will show the path to prosperity and well-being to the entire globe and humanity soon, and we are preparing ourselves for the same. She believes that समृद्ध बनाने के लिए देश को महायज्ञ की हम सभी को अपने जीवन में सामर्थ्य की आहुति देकर ही संकल्पित और सफल बनाएंगे. So now, with such a beautiful thoughts and provoking words, I would like to request ma'am invite ma'am to please address our participants with the first session. Ma'am, please. Thank you, Priyanka. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, You're ma'am. audible. Yes, ma'am. Okay. So, namaste everyone. Namaskar sabhi ko.
Thank you very much for having me here. I would definitely be engaging you in next 45 minutes or 1 hour minute. Will try to give my best, whatever I could attain in this limited time frame. And speaking to you really from my heart on the topic, which is relating to human values, ethics, morals, behavioral science and attitude. मैं आप सभी को एक क्वेश्चन की तरफ ओरिएंट करना चाहती हूँ. सभी जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई भी इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं वो है किसके लिए? ह्यूमन. ये एक जो एलिमेंट है, ये जो एंटिटी है, हमें इसे बहुत गौर से समझना पड़ेगा. Whatever advancements in science is being done, it's for human betterment. Whatever exploration we are doing, it is for the upliftment of human existence. जितनी रिसर्च हो रही है सब इस ह्यूमन के लिए हो रही है. जितनी विद्या अर्जित की जा रही है ये इस ह्यूमन के लिए हो रही है. तो क्यों ना हम आज इस ह्यूमन को जानने की कोशिश करें. जैसे इस कड़ी को हम एक्सप्लोर करेंगे, लिंक में सारी चीजें दर बदर अपने आप आती जाएंगी. ह्यूमन, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, संस्कृत की ये बड़ी खूबसूरती होती है. ये संस्कृत की एक बड़ी खास बात है कि जो संज्ञाएं संस्कृत में होती हैं वो अपने आप में पूर्ण परिभाषा होती है. मनुष्य अगर आप शब्द को लें तो इसमें भी ये एप्लीकेबल है. मनुष्य शब्द बना है मनन. मनन करने वाला जीव, विचार करने वाला जीव. मनन, विचार और चिंतन करके कार्य करने वाला जो जीव है उसे मनुष्य कहते हैं. इट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ ह्यूमन. एक मानव की ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. अब अगर हम मनन करते हैं, अगर हम चिंतन करते हैं, अगर हमारे पास ये बुद्धि है, तो इस बुद्धि को लेकर जो मनुष्य है वो आगे क्या करना चाहता है, वह आगे इस बुद्धि के साथ कहाँ आना चाहता है. अगर आप देखें, हम अपने पूरे एग्जिस्टेंस के जो पिरामिड है उस पे एपिटोम पर बैठे हैं. और इस एपिटोम में वनस्पतियां भी हैं, पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं. ये सारे जो जीव होते हैं, जीव की डेफिनेशन के लिए आपको इस तरह से समझना होगा कि एक शरीर और एक आत्मा का जब विलय होता है, when there is a physical form and when there is a spirit, when they combine together they form a जीव. और उस जीव में जो मनन करने वाला जीव है, जो विचार चिंतन करने वाला जीव है, वो मनुष्य है. तो जीव की इस परिभाषा से इवन प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स. अब ये देखते हैं कि जब मनुष्य, हमें पता चल गया कि यह एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का मिश्रण है, एंड प्लस देयर इज अ स्पिरिट, देयर इज अ सोल बिहाइंड इट. लेट्स सी हाउ दे कोऑर्डिनेट टू ईच अदर. वेदों में बहुत एक्सप्लोर किया गया है इस चीजों को. ऋषि मुनियों ने काफी समय से इस बात पर शोध भी किया कि देखें कि ये आत्मा और शरीर का किस तरह का कॉम्बिनेशन है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है. इसी ज्ञान को प्रोपोगेट होते होते गीता में भी काफी अच्छे से समझाया गया है और एक एनालॉजी दी गई है. एनालॉजी ये दी गई है कि आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर एक यात्रा के लिए निकली हुई है इस जन्म में. अब जब ये शरीर रूपी जो रथ है उसमें आप देखिए कितने खूबसूरती से इन एलिमेंट्स को जोड़ा गया है कि इस रथ का जो सारथी है, जिसे आत्मा इंस्ट्रक्ट कर रही है, वह है बुद्धि. दैट्स योर ब्रेन, दैट्स योर जो हेड हम जिसे कहते हैं. ये बुद्धि जो है, जो आपको चिंतन मनन करने के लिए विवश करती है, यह इस रथ का सारथी है. रथ जो आपका पूरा पूर्ण शरीर है. इस रथ के जो घोड़े हैं, जो अश्व हैं, वह आपकी इंद्रियां हैं. आपके आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी आपकी इंद्रियां हैं जो इस रथ में अश्वों की तरह काम कर रही हैं. एंड देन दे मूव हियर एंड देयर एंड द आत्मा गेट्स कंफ्यूज्ड कि भाई ये आंखें रात रात भर नेटफ्लिक्स क्यों देख रही हैं, ये जो जुबान है ये क्यों तीखे पदार्थों को खाने के लिए इतना ललच रही है. ये क्योंकि फैक्ट हमें पता नहीं कि आत्मा एक्चुअली बुद्धि के जोर से अपने सारथी के द्वारा इन अश्वों को कंट्रोल कर सकती है. यही ज्ञान हमें आसपास मिलता है कि ये जो आत्मा है यही सर्वोपरि है. इसी को, ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करते हुए इन अश्वों को काबू करना है और अपनी यात्रा पे अग्रसर होना है. अब इन अश्वों को जब बुद्धि,
जब इंद्रियों को ये बुद्धि लगाम कसना चाहती है, तो ये लगाम है मन, जिसे हम कहते हैं, हमारा कहते हैं ना, दिल नहीं हो रहा, या मन की आवाज सुनो, अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो ये जो लगाम है ये मन है. Now just see beautifully in a linear equation how this is well explained, that you are the owner of this carriage going for a voyage through the help of a driver, which is your brain, instructing your indriya and your body to be in your command under the instructions of your atma, and then move ahead. अब आप पूछेंगे, एक बड़ा अच्छा सवाल ये आएगा कि भाई ये यात्रा किस तरह की यात्रा है, व्हाट्स एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव, व्हाट्स दिस जर्नी इज ऑल अबाउट. इसको एक लीनियर इक्वेशन में समझिए कि हम अगर बीच में खड़े हैं, आत्मा अपने शरीर रूपी रथ के साथ अगर बीच में खड़ी है, तो इसके पास दो मार्ग हैं. एक है प्रेय मार्ग, जो हमें थोड़ा भौतिक सुखों की तरफ लेकर जाता है, प्रकृति की तरफ लेकर जाता है, जो कन्वीनियंट है, प्लीजिंग है, बहुत इजी है, मगर ये उतना सुखदायक नहीं है जितने की मनुष्य चेष्टा करता है. जिस सुख की प्राप्ति के लिए वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, इस यात्रा पे है, वह कंप्लीट सुख उसे नहीं दे पा रही है. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इन द वाइट डायरेक्शन, देयर इज श्रेय मार्ग. श्रेय मार्ग जो आपके लिए कल्याणकारी है, मगर वो आपका डेडिकेशन मांगता है, मगर वो आपका फोकस मांगता है, मगर वो आपका अटेंशन मांगता है, और अंत में आपको वो चरम सुख देगा जिसकी हम प्राप्ति के लिए इस यात्रा पर निकले हुए. अब अगर हमने ये समझ लिया कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक आत्मा और एक शरीर का जिस तरह का ये विलय है, जिस तरह का एक बैलेंस इसमें क्रिएट हो रहा है, और वो सुख की प्राप्ति के लिए इस यात्रा पे निकला हुआ है, तो आइए देखते हैं कि इस मनुष्य जो इस प्रकृति में अपने आप को ढालकर बैठा हुआ है, उसके साथ इसका आपसी एक सामंजस्य है. तो इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी और इस मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई? ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो मेरे पास काफी समय से आता रहा, और बीच बीच में बहुत छोटे उम्र से ये आता था, और मैं फिर डार्विन की थ्योरी पढ़ती थी, फिर कुछ और उत्पत्ति के बहुत सारे जो वेस्टर्न फोकसेस थे वो पढ़े, और फिर धीरे धीरे जब वेदों की तरफ ज्ञान और बढ़ता गया, तब मैं आपको ये गूढ़ बात निकालकर आपके सामने ये प्रस्तुत कर रही हूँ. प्लीज अलाउ मी. इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, इसका बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन इन ऋग्वेदास. देयर आर डेडिकेटेड श्लोक्स फॉर इट. Mentioning that, I would request all of you to please put your pen and paper very handy, because this number which I am giving is a magical number which entire world is now concentrating on. NASA is all after this number, that how Vedas and the Rishi Munis of our civilization could attain to this number and how this number was derived. I'll explain you in my coming session how this number was also derived. So please keep a pen and paper handy and give your mathematical brain a storm. इस ब्रह्मांड की जो पूरी उत्पत्ति है, उसको हुए आज की तिथि में 1,96,8,53,120 वर्ष बीत चुके हैं. I'll repeat, इस ब्रह्मांड को बने हुए, इस पृथ्वी को बने हुए, हमारी रचना को हुए 8,96,8,53,120 वर्ष हो चुके हैं. अब आपका सवाल ये आएगा कि कितने वर्ष और बाकी हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन, और आए दिन इस तरह की कुछ होती हैं. शायद सृष्टि अपने प्रलय पर है, शायद ये खत्म हो जाएगी, कुछ समय और नहीं चल पाएगी. तो मैं आपको बताती हूँ कि मोटा मोटा यही पीरियड हमारे एग्जिस्टेंस का और आगे रहना है. सो वी आर इन द मिडल ऑफ आवर एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ दीज 4,32,00,00,000 वर्ष. जो 4,32,00,00,000 वर्ष होते हैं, ये पूरी इस ब्रह्मांड की पूरी आयु है, और हम इसके मध्य में. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे है. आपने कभी गौर से देखा हो या सुना हो, जो हम बहुत ज्यादा करते नहीं हैं, हमारे गृह प्रवेश के समय, या अगर परिवार में एक नवजात शिशु का जन्म होता है, तो उसके अन्नप्राश के समय हम यज्ञ के लिए पुरोहित को बुलाते हैं. वह पुरोहित एक संकल्प पाठ पढ़ता है. देखिए किस तरह से ऋषि मुनियों ने इस वैदिक साइंस को, इस टाइम मैनेजमेंट को, इस काल गणना को हमारी डे टू डे लाइफ में इंड्यूस कर दिया था, कि जब आप कभी कोई शुभ कार्य करें और ये यज्ञ संकल्प आप लें, तो इस संकल्प पाठ के द्वारा
उस घर के सभी लोगों को, यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को एक श्लोक के माध्यम से बताया जाता था कि आपकी उत्पत्ति कब हुई और आज आप कहां पर स्थित हैं। इस श्लोक में आप ध्यान से देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट एंड स्पेस मैनेजमेंट, दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंटिटी of science and time and space has been explained this. Allow me, I'll read it for you. Om Tatsat Shri Brahmano Dvitiya Praharde Vaivaswate Manvantare Ashtavinshati Tame Kali Yuge Kali Pratham Charne Eko Vranda Shranvati Kaushtasto Lakshani Tripanvashat Sahasrani Amuk Samvatsare, ये शब्द आपने सुना होगा, विक्रम संवत्सर जिसकी हम बात करते हैं. सो डैश संवत्सरे डैश अयने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम जस्ट यू सी, अयने डैश ऋतौ, इस ऋतु में, डैश मासे डैश पक्षे डैश तिथौ डैश वासरे, तिथि को वासों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, डैश वासरे डैश नक्षत्रे डैश काले. काल तक की गणना एक मनवंतर से, जिसका नाम वैवस्वते मनवंतर अभी श्लोक में आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, उस मनवंतर से उस काल खंड तक की गणना इस श्लोक में मैंने जो अभी पढ़ी ये की गई है. आगे का श्लोक आपको स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. ब्यूटिफुली इट हैज बीन डन. अभी हम साइंस एक्सप्लोर कर रही है कि कॉन्टिनेंट होते हैं, फिर एक राष्ट्र होता है, फिर जनपद होते हैं, फिर प्रांत होता है. ये देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है. We just don't put enough attention and enough focus on these ideas in these scientific knowledge base. श्लोक कहता है, आर्यवर्ते डैश प्रांतस्य, इस प्रांत में मतलब, डैश जनपदस्य डैश स्थाने अयम देव यज्ञ क्रियते. यह यज्ञ करते हुए वो पुरोहित बता रहा है, ये इसका मंडेन काम था. जब ये यज्ञ में जाएगा ये पूरा संकल्प पाठ पढ़ेगा, और अब मैं संकल्प पाठ में बताई हुई काल गणना को बताऊंगी, जिसके लिए नासा ने अपने साइंटिस्ट्स को संस्कृत पढ़ाने के लिए एक्सपोज किया हुआ है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन दिस सिंगल श्लोक. हमने अभी बात की थी मनवंतर की. एक जो पूरी सृष्टि जब बनती है वह उसकी आयु होती है 14 मनवंतर, 14 मनवंतर की ये पूरे ब्रह्मांड की एक ड्यूरेशन होती है. जैसा मैंने आपको बताया कि हम अभी मिड में हैं, तो 6 मनवंतर मनुष्य इस पृथ्वी पर जी चुका है, वो समय पूर्ण कर चुका है. हम अभी 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, जिसका नाम है वैवस्वते. सारे मनवंतर के नाम आपको मिलेंगे, 14 के 14 मनवंतरों के नाम वेदों में हैं. अगर किसी को इंटरेस्ट हो वो तो जाके देख सकते हैं. आगे 7 मनवंतर हमें और जीने हैं, सृष्टि और रहेगी. अब मनवंतर को देखते हैं हम, ये ईयर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं. देखिए ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है. 14 मनवंतर की पूरी सृष्टि की रचना की आयु, एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है. 71 चतुर्युग, चतुर्युग आपने आई एम श्योर सुना होगा. ये 4 युगों के कॉम्बिनेशन में एक चतुर्युग बनता है, और ऐसे अगर 71 चतुर्युगों को ऐड कर दिया जाए तो एक मनवंतर बनेगा. चतुर्युग में जो 4 युग होते हैं उनमें है सतयुग, जिसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन होता है 17,28,000 वर्ष. जो त्रेता युग होता है, जो नेक्स्ट युग होता है फॉलोड बाय सतयुग, उसकी ड्यूरेशन होती है 12,96,000 वर्ष. द्वापर युग जो होता है वो 8,64,000 वर्ष का होता है. और कलयुग जो होता है वो लास्ट में आता है एक चतुर्युग के, इट्स लास्ट लेग, हैविंग द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4,32,000 years. ये एग्जैक्ट प्रिसाइज कैलकुलेशन है इन चतुर्युगों की. अगर आप इसको सबको ऐड करें तो एक चतुर्युग में कुल 43,20,000 years बनते हैं. अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एक चतुर्युग इतने साल का है तो 71 चतुर्युग कितने वर्षों के होंगे. और अगर हम 6 मनवंतर जी चुके हैं और करंटली हम 7वें मनवंतर में हैं, तो इसकी आयु कितनी बनती है. दैट कम्स टू दैट मैजिकल फिगर ऑफ 1,96,08,53,120 वर्ष. ये आयु इतनी है.
और आगे आने वाले समय में हमें लगभग अगर हम मोटा मोटा लें इन्हीं मनवंतर की कैलकुलेशन से, तो ये हमारे 2 अरब वर्ष हैं जो अभी बचते हैं। Isn't it? It gives you so much of clarity. अभी कोई भविष्यवाणी करता है कि शायद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, but then नहीं, अभी नहीं होनी है। ऊपर नीचे थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता रहेगा, बट ये चलती रहती है। अब ये जो मनवंतर है, 14 मनवंतर की जो एक सृष्टि की ड्यूरेशन होती है, यह अनादिकाल से है। आप इसको टैग नहीं कर सकते, इसको एक टैंजिबल फॉर्म नहीं दे सकते, और तभी ये कहा जाता है जो इन्फिनाइट नंबर था, जो इन्फिनिटी था, यह भारत ने, ये भारतीय सिविलाइजेशन ने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को दिया कि ये इन्फिनाइट क्या होता है। ये इन्फिनाइट यही होता है कि एग्जिस्टेंस जो आज है, इसको तो आप आगे पीछे कुछ समय तक माप सकते हैं, बट ये कब से चल रहा है, ये 14 मनवंतरों का खंड, यह नहीं बता सकते। और तभी ये जो दूसरा एक बेसिक नॉलेज है, ये डिराइव होता है कि ये जो 3 पदार्थ हैं, इनकी न कभी उत्पत्ति होती है, न कभी इनका संहार होता है, न कभी विलय होता है, न ये कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। ये 3 ऐसी एंटिटीज हैं। एक आत्मा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, एंड वी शुड ऑल रिमेम्बर, ये आत्मा हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। यह आप मान के चलिए कि कभी नहीं न जन्म लेती है न मरती है, यह अनादि है। दूसरा परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि की रचना कर रही है अपने अदम्य साहस से। मनुष्य का अपना अदम्य साहस है, जिसकी वजह से हम सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं, इस बुद्धि के बल पर। बट ये बुद्धि को रचने वाला भी परमपिता परमेश्वर है। इस आत्मा द्वारा इस बुद्धि को काबिज कराने वाला भी वो परमपिता परमेश्वर है। तीसरा आता है जिसका ना जन्म है न मृत्यु है, वह है प्रकृति। प्रकृति जैसे हम शब्द लेते हैं तो हमें एनवायरमेंट का ध्यान आता है, नॉट एग्जैक्टली एनवायरमेंट, बट यस द स्मॉलेस्ट atom, I would say, the smallest degree of this entire cosmos, this entire universe, जिसे हम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, इन एटम्स के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो एटम्स हैं, ये कभी नहीं न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त करते हैं, दे जस्ट चेंज देयर कॉम्पोजिशंस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, 2 एटम्स इसके एक मिला तो वाटर बन गया, थोड़ा सा इसको इवोपरेट किया, अग्नि के इसमें गुण मिले, ये वाष्प बन गया, फिर कुछ और इसमें तत्व मिले, कुछ रिएक्शंस हुए इन एटम्स के, ये कुछ और बन गए। जैसा कि हम जानते भी हैं कि मनुष्य जो है वो 5 तत्वों से बना है, तो वायु के, अग्नि के, आकाश के, पृथ्वी के तत्व मिलाकर ये ह्यूमन बॉडी। एंड डोंट यू थिंक during this conversation of these atoms which were never created, will never be destroyed, it brings you to the third equation of Newton, जिसमें वो clearly कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed, it can just change one form to another, isn't it? ये वही फॉर्म है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बन तो जाएंगे, बट इनके जो बिल्कुल अघटित वाले जो कण हैं, ये न कभी बनते हैं न कभी प्राप्त होते हैं मृत्यु को। सो ये 3 वस्तुएं हैं ये जो अजर अमर रहती हैं सदैव। अगर आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो तो आप फिर समझ पाएंगे कि इन एटम्स को हमें किस तरह से यूज करना है फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, फॉर आवर ओन अपग्रेडेशंस। अब जब हमने यह समझा कि ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस जिसमें हम इतना रिलेट करते हैं, हमारी जीवन इसके बिना संभव नहीं है, यह कितने समय से है और कितने समय रहेगी, और मनुष्य का जो शरीर है वो अपनी आत्मा से किस तरह से कोऑर्डिनेशन में है, तो आइए अब जानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यह मनुष्य संसार की, जिसके प्रति वो इतना दायित्व है, जिस मनुष्य का अपने संसार के प्रति, अपने कॉस्मोस के प्रति, इसकी सुख, शांति और समृद्धि के लिए मनुष्यों के कौन से कर्तव्य हैं, ऐसे कौन से मनुष्यों के दायित्व हैं, तथा धारण करने योग्य ऐसे कौन से कार्य हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य को अपनी इस जर्नी पे, इस वॉयज पे ब्रेन की मदद से नॉलेज को लेते हुए, ये कौन से ऐसे दायित्व हैं, ये कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें हम ह्यूमन वैल्यूज का नाम देते हैं, जो मनुष्य को धारण करने हैं। अब इस धारण शब्द से लीजिएगा, धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म की व्याख्या देखिए अब आप, जो धारण करने योग्य है मनुष्य के वही धर्म है, क्योंकि पशुओं का धर्म नहीं हो सकता, उनका इंद्रिय विकास इतना नहीं है, उनकी बुद्धि, उनका मनन, उनका चिंतन इतना लेवल का नहीं है।
वनस्पतियों में ये बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसलिए वनस्पतियों में आत्मा तो जरूर है, मगर ये मनन करने की, चिंतन करने की और ये इंद्रियों को अपने वश में करने की और इनसे कार्य करने की क्षमताएं नहीं होती वनस्पतियों में। सो धारण करने योग्य जो मनुष्य के श्रेष्ठ विधान हैं, जो श्रेष्ठ पदार्थ हैं, जो श्रेष्ठ आचार विचार हैं, जो श्रेष्ठ कर्तव्य हैं, वही धर्म है। और आज देखिए हम धर्म की क्या व्याख्या करते हैं। देयर इज अ टैबू इफ वी यूज दिस वर्ड धर्म। इतना मिस इंटरप्रेटेड है, इसीलिए शायद हम अशांति की ओर हैं, इसलिए शायद हम बेचैन हैं। 5000 years back in Mahabharata, Bhishma Pitama gave a beautiful definition according to his knowledge level. जो उनकी अपनी ज्ञान की क्षमता थी, उसके हिसाब से उन्होंने धर्म को समझाया था। देखिए, बड़ा ये आपके लिए जानने लायक है। धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। अर्थात संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों का धारण करने योग्य धर्म एक ही है। अब आप ब्यूटी देखिए, द स्केल दैट वी आर टॉकिंग फॉर द धर्म, धर्म का स्केल विश्व लिया गया है कि संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों का, सभी मनुष्य मतलब अगर वो अंडमान एंड निकोबार का कोई ट्राइब है या ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में प्राइम मिनिस्टर है, सभी मनुष्य जिनमें ये जीव, जो ये जीव है जिसमें आत्मा और शरीर का विलय है और मनन करने की शक्ति है, ये सारे मनुष्यों का धारण करने योग्य धर्म एक ही है। सबके लिए ये एक ही होना चाहिए। जो धारण करता है, एकत्र करता है, श्लोक में एक शब्द आया है संयुक्त, एकत्र करता है तथा अलगाव को दूर करता है, उसे धर्म कहते हैं। जिसमें प्रजा को एक सूत्र में बांध देने की ताकत है, वह निश्चय ही धर्म है। धर्म कभी भी बंटवारे नहीं करेगा। ये इतनी प्यारी सी इनकी डेफिनेशन थी। आई लव दिस, सो आई शेयर विद यू। आइए देखते हैं, इन वेदों को पढ़ते हुए, साइंस को जानते हुए, हमारे ऋषि मुनियों के गूढ़ ज्ञान को और एक्सप्लोर करते करते करते, और ये अभी भी जो ये पद्धति थी, ये जस्ट 100 years बैक भी हमारे सारे गुरुकुलों में हुआ करती थी। All the villages, it has been documented. You people, I am very sure that all the people listening to me, आज की जो जनरेशन है वो बहुत तार्किक है। वो हर चीज को बुकों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, श्रुति के द्वारा जानना चाहेगी, क्रॉस वेरीफाई करेगी, चेक करेगी। अब वो आर्ग्यू भी करती है, वह सोर्सेस भी पूछती है। तो आप, ये डॉक्यूमेंटेड है ब्रिटिश हिस्ट्री में, ब्रिटिश म्यूजियम्स में। आप देखिएगा कि जब वहां के लोग यहाँ पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया, भारत के सभी जो जनपद थे, जो सभी ग्राम थे, उनमें गुरुकुल हुआ करते थे। इन गुरुकुलों में संस्कृत के द्वारा 16 subjects, 16 subjects were taught vigorously from the age of 8 years till the age of 25 years in a first format, जिसे हम कहते हैं बैचलर्स। तो 25 साल तक आपकी बैचलर्स होगी। And then when people get urged to explore more, get into PhD of today's context, तो वो 48 years तक फिर इसको, इन विद्याओं को प्राप्त करते थे। इन 16 विद्याओं में, 16 कलाओं में, you name the education system, या you name the stream, it was well explained. Astrophysics, astronomy, metallurgy, chemical engineering, civil engineering, architecture, वास्तु, everything, किसी भी कला का, किसी भी विद्या का फॉर्म हो, वो इसमें हुआ करता था। This has been documented. जिसको अनफॉर्चुनेटली मैकले और मैक्स मूलर की शिक्षा पद्धति ने इस तरह से तोड़ा कि हम अपने वेदों से दूर होते गए। और आज ये है कि जो शुद्ध वेद हैं वो भी एक्सेस में नहीं है। इसलिए मुझे आज ये बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रही है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और मैं अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई करवाई, वो मैं आपको अभी आज इस टॉक के माध्यम से देना चाह रही हूँ। तो इसी ज्ञान को जानते जानते महर्षि मनु ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है और बताए हैं इस धर्म के 10 लक्षण। आप ध्यान से सुनिए कि ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये किस तरह से ज्योग्राफिकली इट इज फॉर एवरीवन टू एक्सेप्ट। कोई भी इसे तार्किक रूप से, आप चाहे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ से ले लें, चाहे आप आध्यात्मिक रूप की कसौटी पर इसको तौलें, ये आप पे एप्लीकेबल होगा। एज आई मेंशन, ये ट्राइब पे भी होगा, ये प्राइम मिनिस्टर पे भी होगा, ये ज्योग्राफिकली भी दूर रिमोट ग्रीनलैंड के बंदे पे भी होगा,
और ये दिल्ली में बैठे हुए वासियों पे भी होगा, ये कश्मीर पे भी होगा, ये आप अगर जेनेवा चले जाएं वहां पर भी होगा। तो महर्षि मनु कहते हैं जो धर्म के 10 लक्षण हैं वह इस तरह से हैं: धृति क्षमा, दमोस्तेयम, शौच मिंद्र निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। पहला उन्होंने लक्षण बताया धृति। धृति का अर्थ होता है दृढ़ रहकर परेशानियों से न घबराना, विचलित ना होना। मनुष्य अगर किसी परिस्थिति में ऐसा है तो अपने आप को कंपोज रख सके, अपनी इंटीग्रिटी को अपने साथ रख सके, बह ना जाए। तो धृति ये धर्म का एक बड़ा लक्षण है जो सबके लिए एप्लीकेबल है कि सब में एक पेशेंस लेवल होना चाहिए। दूसरा बताया गया क्षमा। क्षमा माफ करने को मत कंसिडर कीजिएगा, शक्ति का उचित प्रदर्शन क्षमा कहलाता है। कि मेरे पास शक्ति है, मैं किसी को दंडित करने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं, मगर मुझे ये पता है कि उससे ये जो गलती हुई है वह शायद इस गलती को ठीक कर देगा। ये मैं अपनी बुद्धि से विवेचन कर रही हूँ। ये शक्ति भी उन्हीं को प्राप्त होती है जो विद्या को अर्जित कर कर एक लेवल पर पहुंचते हैं। तो अगर मैं जानती हूँ कि अगर इस समय मैंने उसे दंडित नहीं किया, अगर मैंने क्षमा कर दिया, तो वो आगे और बेटर करके बहुत कुछ इस विश्व को दे जाएगा, इस समाज को दे जाएगा। तो उस समय मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, नहीं करना, या उचित प्रदर्शन में उसे वार्निंग देकर छोड़ देती हूँ, यह क्षमा है। उसमें वो जो भूल हो गई उसके गुण को एलिमिनेट करना कि वो आया कहां से, उसको समझाकर यह कर देना क्षमा है। आपने उसे रियलाइज करवाया कि आपकी गलती हुई, मगर आप इस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हो, यह क्षमा है। तीसरा धर्म का एक बड़ा अच्छा लक्षण बताया गया, दम। दम हम कहते भी ना, दम भरना, एक सांस लेते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है नियंत्रित है। तो यह दम जो है, यह योग और साधना के बल पर अपने आप को वश में करना, अपने इस मन को वश में करना, ये जो लगाम हमने डिस्कस की थी, इसको कंट्रोल में रखना आत्मा को, यह दम कहलाता है। योग की एक बड़ी अच्छी परिभाषा संस्कृत में है, योगश्च वृत्ति निवारतः निरोधः। जो योग होता है वो वृत्तियां, बुराइयां, कमियां, इनको धीरे धीरे कम करता है। दम से, श्वास पे कंट्रोल करके आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हो थोड़े समय के लिए, जिसको मेडिटेशन में आप अगले सेशंस में भी समझेंगे। तो वह ये योग है, ये योनि, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये योग शब्द भी योग कहते हैं ना, जोड़ जोड़ जिसे कहते हैं हम, तो जोड़ है वो योग, शरीर और आत्मा का प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन हो जाना। तो यह योग और साधना से मन को वश में करना दम कहलाता है। हम चौथे लक्षण पर आते हैं, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से किसी भी पर पदार्थ का हनन न करना। कहने का ये तात्पर्य, इसको आप चोरी शब्द ले सकते हैं, कि जो भी पदार्थ मेरे पुरुषार्थ का नहीं है, मेरे से बिलोंग नहीं करता, मैंने इसके लिए किसी तरह का प्रयत्न नहीं किया है, न पसीना बहाया है, न चेष्टा की है, वह अगर मैं अर्जित करने की इच्छा भी रखती हूं तो यह अधर्म है, क्योंकि वह पर वस्तु है, वह पराई वस्तु है। आजकल जैसे ये बहुत हो रहा है, फॉर्मूलाज चुरा लिए जाते हैं और फिर उस पर शोध होते हैं, फिर आप पेटेंट ले लेते हैं। ये आपको पता है कितना बड़ा अधर्म है। किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के द्वारा इन ज्ञान वस्तुओं को पढ़कर, पठन पाठन कर कर एक कोई रिसर्च का कुछ निकाला है। You can get inspired, but then a due credit should be given to the person from whom you have been inspired. So किसी भी तरह का मन, वचन, कर्म से पर पदार्थ का हनन, जिसे हम चोरी कहते हैं, वो अस्तेय है। अब आप देखिए, इस सिंगल अगर धर्म के लक्षण को अगर आपको बाकी भी याद ना रहे, सिर्फ ये याद रहे कि जिसके लिए मैंने पुरुषार्थ नहीं किया वह मेरा नहीं है, मैं उसे अर्जित नहीं करूंगा, इट डज नॉट बिलोंग टू मी। सिर्फ इतना अगर याद रख ले मनुष्य, तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन विटनेस इन दिस वर्ल्ड। कि भाई ये मेरी पोस्ट नहीं थी, मैंने इसके लिए फाइट नहीं किया, मैंने डाउरी दी, मैंने ब्राइब दिया, यह नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं इन सब चीजों से अलग हूं। मैं इस पोस्ट को या इस पदार्थ को नहीं इस्तेमाल करूंगी। ये छोटी से छोटी वस्तुओं में भी हो जाए। बच्चों को समझाइए कि जो टॉफी आपको पेरेंट्स ने नहीं दी वो आप उसे एंजॉय करने के हकदार नहीं है। आप छोटी सी ये बात डालिए, और ये बड़े बड़े इवन जो हम पॉलिटिकल
चेंजेस देखते हैं रैलियों में और इन सब में, इनमें भी ये उतना ही लागू होता है। पांचवे पर हम आते हैं, जो पांचवा धर्म का लक्षण है उसे कहते हैं शौच। अब शौच से हमारी ये कॉमन मेंटालिटी ऐसी होगी, हम शौचालय को थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। हाँ, ये शाब्दिक अर्थ शौच उसी से बना हुआ है, मगर क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग ऑफ नॉट ओनली योर बॉडी, शौच जो इस धर्म के लक्षण में बताया गया है महर्षि मनु द्वारा, वह है शरीर, मन और बुद्धि तीनों को पवित्र रखना। अब शरीर को हम नहा धो के पवित्र रखते हैं, मन को हम अच्छे विचारों से, अच्छे इन सेशंस से, जिससे हम उपनिषदों के द्वारा अपने गुरुओं से सुनते भी थे, श्रुति के द्वारा हम अपने बच्चों में कठोपनिषद या हतोपदेश की कहानियां या पंचतंत्र की कहानियां, ये उनको सुना सुना के ये हम यही कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है उसको क्लीन कर रहे हैं। So I strongly believe that these needs to be revived again. हमारे घर हमारी इकाई है, इससे ही शुरू होगा। हम इन सेशंस में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाएं, पढ़ें, जानें और उसको आचरण में लाएं। इसी का एक शौच का एक बड़ा अच्छा कंपोनेंट है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये एक वैदिक प्रोसेस था जिसको ऋषि मुनियों ने जाना और इसे हमारी डे टू डे दिनचर्या जो होती थी उसमें इंड्यूस किया यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। प्लीज इसको किसी रिलीजियस उसमें मत बांटिएगा, आप इसका साइंस बिहाइंड इट देखिएगा। ये 200 साल पहले जैसे जो अभी आए भी हैं नए प्रांत जो संप्रदाय हैं, ये अभी जैसे 6000 साल पहले या कुछ इससे पहले आए, इससे पहले पूरे जो सभी मनुष्य थे वो जानते थे कि अग्नि का ये एक स्वरूप होता है कि इसमें अगर आप कोई वस्तु डालेंगे तो वो मल्टीफोल्ड होकर सारे एनवायरनमेंट में क्विकली मींस एट द रेट विच नन ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल कैन प्रोवाइड, इतनी स्पीड पे ये पूरे आसपास आपके फैला देती है। आप एक हॉल में हैं, आप एक मिर्ची अग्नि में डाल दीजिए, लाल मिर्च, पूरा हॉल धूं धूं करके सब खांसने लगेंगे। सो एवरीवन न्यू कि ये अग्नि के ट्रेट्स हैं, ये उसकी क्वालिटीज हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जाना और यह किया कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रातः काल और सायंकाल को यह यज्ञ करें, यह अग्निहोत्र करें, जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाएं, अग्नि को सपूर्द किए जाएं, जो जब एनवायरनमेंट में मिले तो इसका जो कहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट यह ह्यूमन बींग्स ले सके। इसी पर अग्निहोत्र पर बहुत रिसर्च चल रही है। फेयरफील्ड नाम की एरिया में यूएसए में देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में अग्निहोत्र किया जाता है और ये जो सारे पैरामीटर्स हैं जिनको मैंने अपने क्वालिटेटिवली बताया, उनको क्वांटिटेटिवली टेंजिबली दे आर पुटिंग नंबर्स टू इट। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूअसली अगर 14 दिन तक सुबह शाम इसलिए चुने गए थे क्योंकि इस समय जब सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सूर्य की किरणें पड़ने पर पृथ्वी पर, जहाँ पे जल के कण हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको आप टैप कर सके, तो इसलिए ये सुबह और शाम का समय बताया गया। और इसमें जब आप अग्निहोत्र करके कपूर, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और भी बहुत सारी औषधियां जिसको हमारे आयुर्वेद में एक्सपेरिमेंट किया गया, जाना गया कि भाई ये तो बड़े मेडिसिनल वैल्यूज वाले प्लांट्स हैं, इनको सुखाकर सामग्री बनाई गई और इन सारे पदार्थों को जब अग्निहोत्र में डाला गया तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन लेवल ऑफ द सराउंडिंग एरिया ऑफ 8 किलोमीटर रेडियस, सी दे हैव मेड दिस ऑल्सो कि आपके 8 किलोमीटर के रेडियस में जहां अग्निहोत्र हो रहा है वहां पे ऑक्सीजन लेवल हैज बीन इंक्रीज ट्रेमेंडसली, द ppm लेवल हैज गॉन डाउन, द अमाउंट ऑफ harmful gases like carbon monoxide, carbon dioxide has reduced. जो पर्स्पिरेशन है इन प्लांट्स, जैसे हम स्टोमेटा के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उसका रेट बहुत अच्छा हो गया है। उसकी वनस्पतियों में समय पे फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, मतलब वो अपनी साइकिल को पूरे समय से क्लीन कर पा रही हैं और पूर्ण रूप से कर पा रही हैं। जो फल उससे उग रहे हैं वो मेडिसिनल वैल्यूज लिए हुए हैं, गुणात्मक हैं। जो मनुष्य इसके इर्द गिर्द रहे हैं इस 8 किलोमीटर पैरामीटर में, उनका स्ट्रेस लेवल हैज डिक्रीज, the blood pressure levels, the insulin levels have been in a controlled manner. आप देखिए ये कितना बड़ा शोध हो रहा है, ये चल रहा है हमारे आसपास।
मगर क्योंकि हम वेदों से अलग हैं, हम इन बातों को सुनते नहीं हैं। कुछ भी ज्ञान की वस्तुओं, वी लुक फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड। मेरे बच्चे को जन्मदिन पर एक किताब गिफ्ट की गई थी। उस किताब का नाम था 101 इन्वेंशंस। जब वो पढ़ा करता था मेरे बगल में बैठकर, ये 1 साल पहले की बात है, तो बताता था भाई रस्सी किसने इन्वेंट की, रोमन्स ने। भाई चक्की किसने इन्वेंट की, यूरोपियंस ने। मैं स्तब्ध रह गई और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा, मुझे मन में बड़ी ग्लानि भी रही कि ये सारी साइंस जिसपे नासा से लेकर ऑल द रिसर्च एजेंसीज आर वर्किंग ट्रिमेंडसली हार्ड, और ये उस बुक में कोई भी एक इन्वेंशन हमारे नाम पर नहीं है, भारत किसी भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर नहीं थी। इस दायित्व को समझिए, ये हमारा अपना नॉलेज है जो हम इस तरह से लुटाए बैठे हैं। इस अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी के जो आउटकम्स हैं, उन्हें जब लोगों में डाला गया, दे वर अमेज्ड। इसी अग्निहोत्र में, इसी यज्ञ में एक पदार्थ डलता है जो गाय का घी होता है। कहा जाता है शुद्ध गाय के घी से आप अग्निहोत्र कीजिए, तो ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए ये उसमें होंगे। अब गाय के घी का मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंसिडेंस आई वुड लाइक टू शेयर। ये 2016 या 17 की बात है। लोकल न्यूज़पेपर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा के लोकल न्यूज़पेपर्स में ये एक न्यूज छपी थी कि वहां पर तस्करी हो रही है जो ह्यूमन बेस की, जो भारतीय बेस की गाय हैं, जिन्हें हम देसी गायों के नाम से जानते हैं, जिनकी प्रजातियां 144 प्रजातियां भारत में हुआ करती थी, जो अब हमने क्योंकि ध्यान नहीं दिया तो ये रिड्यूस होते होते 34 तक रह गई हैं। इन देसी गायों के एम्ब्रियोस को एक्सपोर्ट किया जा रहा था इलीगली टू द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूरोप एंड जिनेवा। जस्ट इमेजिन, इन सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, थोड़ा सा एशियंस भी, क्योंकि सिंगापुर एंड कोरियन, these countries are actually exploring, they are putting a hard amount of their GDP into research and exploration and these inventions. तो इन यूनिवर्सिटीज में या इन शोध संस्थानों में ये एम्ब्रियोज भेजे जा रहे हैं ताकि वो वहां पर क्रॉस ब्रीड कराकर भारतीय नस्ल की गायों को उत्पन्न कर सके और इससे होने वाले दूध और दूध से होने वाले घी को इस्तेमाल में लाएं और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ह्यूमन हेल्थ है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको अपग्रेड करें। लुक एट दिस। और हमें ये धीरे से बताया भी नहीं गया, ये लोकल न्यूज़पेपर्स में ये बात दब गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने पैसा वैसा खिलाकर ये शांत कर दिया गया। तो ये घी जब यज्ञ में पड़ता था, अग्नि से मिलता था, और जब ये 1000 टाइम्स, इसका एक एग्जैक्ट वर्ड भी है, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी फोल्ड उसकी, उस जो भी पदार्थ उसमें जा रहा है अग्नि में, अग्निहोत्र के समय, वो कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का होकर आपके आसपास को बेनिफिट करता था। इसी यज्ञ का से रिलेटेड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। आप सब फार्मेसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं। मेडिसिन साइंस में ये कॉन्सेप्ट रहा कि जब कोई एलिमेंट है या कहीं पे बीमारी है तो हम टैबलेट लेते हैं, विच इज इन अ सॉलिड फॉर्म। टैबलेट खाने के बाद हम कहते हैं कि अभी 20-25 मिनट लगेंगे, let the tablet go inside your stomach, let the bile juices come in, let the churning happen, let it dissolve, and then it goes to your intestines, and then the absorption will take place. और तब ये ब्लड में जो ये टैबलेट हमने खाई थी ये खून में जाएगी और फिर जहां पर हैम्पर्ड एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, वहां पर पहुंचेगी खून के द्वारा और उसको रिलीव करेगी। ये एक सॉलिड स्टेट की टैबलेट का काम था। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा आयुर्वेद है कि जो हम खा रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, इसी से हमारा शरीर बन रहा है। ऑल द सेल्स, माइन्यूटेस्ट लेवल इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड। जितना आप जंक ले रहे हैं उतना ही हमारा दिमाग जंक की तरह हो रहा है। जितना शुद्ध आहार, अनकुक्ड फूड है कुछ मात्रा में, जो आप फल फूल ले रहे हैं, शाक सब्जियां ले रहे हैं, उसी से हमारा शरीर बन रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा आयुर्वेद है कि आप अगर खाने की वस्तुओं को वात, पित्त, कफ से कंट्रोल्ड रख रहे हैं तो आपकी बॉडी में इस तरह के एलिमेंट्स जो कफ से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, वो नहीं होंगे। या अगर आपका पित्त से रिलेटेड है तो बाइल फॉर्म जो होती है वो कंट्रोल्ड रहेगी। तो ये भोजन से रिलेटेड है, ये आयुर्वेद बहुत पहले बता चुका है। और यही वो टैबलेट का भी रूप है कि वो टैबलेट जाएगी एंड देन एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में जाएगी और वही रक्त संचार आपकी सारे सेल्स तक होगा। सेकेंड ये फॉर्म आई कि
मैं भैया अभी बात करती हूँ, लास्ट रूम में दे दीजिए, यहीं रख दीजिए, यहीं रख दीजिए, हाँ हाँ नीचे दे दीजिए, 4th फ्लोर पे जी, 3rd फ्लोर पे, हाँ सॉरी आई गॉट वन फाइल, इम्पोर्टेंट फाइल, ऑफिशियल फाइल। या सेकंड इसकी जो फॉर्म होती है वह होती है कि मेडिसिन साइंस ने ये रिसर्च की और बताया कि अगर इसको आप इंट्रावेनस दे दें इंजेक्शन के रूप में तो ये आपको और क्विकली रिलीफ करेगी। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 25 मिनट्स विल बी रिड्यूस डाउन टू 5 मिनट्स। कहते हैं ना इंजेक्शन देती 5 मिनट में आराम आ जाएगा, सो इंट्रावेनस दिया, ब्लड में मिला, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और फिर जो इफेक्टेड एरिया है वहां तक गया। अब तीसरा शोध जो मेडिसिन साइंस में चल रहा है वह है इनहेल करके, श्वास के द्वारा वायु के कणों को अपने अंदर आप जितनी जल्दी लेंगे वह और क्विकली इफेक्ट करता है, वह विद इन सेकेंड्स आपको रिलीफ करेगा। आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे, माय फादर वाज अ सीनियर फार्मासिस्ट इन एनटीपीसी हॉस्पिटल देयर एट छत्तीसगढ़, वहीं मैंने अपनी पढ़ाई की केंद्रीय विद्यालय से। सो छत्तीसगढ़ में रहने का भी एक बड़ा फायदा मुझे रहा कि वहां पे जो ये वन संपदा है ये बहुत है, वहां के लोग भी हैं जो वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न उसमें आए नहीं है कल्चर में, तो मुझे अपना जो बेस है वो जानने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए एक एसेट रही। तो जब हम बीमार पड़ते थे, थोड़ा सा कफ कोल्ड हुआ, तो वो हमेशा यही कहते थे कि स्टीम ले लो एक बकेट में और इसमें कार्वोल की 2-3 कैप्सूल्स डाल लो, या कुछ नहीं मिला तो विक्स डाल लो। अब आप विक्स की कॉम्पोजिशन देखिएगा, ये सारी वही जड़ी बूटियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ सामग्री में होती हैं अग्निहोत्र के। नीलगिरी का तेल है इसमें और ये सारे, तो वो हम डालते थे कार्वोल कैप्सूल, वो पिघलते थे और स्टीम लेते थे और आराम आता था, हम सो पाते थे। और आज आपने देखा भी होगा पिछले 5-6 साल से बच्चों के साथ एंटीबायोटिक्स को बहुत रोका गया है। जो अच्छे पेडियाट्रिशियंस हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंटीबायोटिक्स विद स्मॉल किड्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं नेबुलाइज करा दो, बच्चे को नेबुलाइज करा दो। व्हाट इज दैट नेबुलाइजेशन? इट्स अ स्टीम इनहेलेशन, कि वो जो वायु के कण है उसमें जो वाष्प के कण मिले में वो बहुत जल्दी तुरंत जाकर आपके लंग्स में जाकर वो फिर अफेक्टेड एरिया को क्विकली रिलीफ देते हैं। सो आप सोचिए कि शोध अब इस वायु के उसमें जा रहा है। इवन आई शुड नॉट कोट एक्चुअली, बट ड्रग्स का भी जो ये इनहेल का है ये तुरंत असर दिखाने वाला है कि आप सांस लेते हैं और तुरंत आपको असर दिखता है। ये इसी से है। पुराने समय में जो धुनी रमाई जाती थी, इसका बड़ा गलत रूप आज प्रस्तुत है। लोगों को पता नहीं है किस पदार्थ को अग्नि में डालना है या किस उसमें डालना है, इस वजह से ये धुनियां इतनी गलत रूप ले रही हैं कि लोगों को खांसियां आने लगती हैं। बट जो शुद्ध अग्निहोत्र होता था उनमें आप अगर आपने 10 बार श्वास ले लिया भर भर के, you'll see for next 2-3 days you'll be so stress relieved। इसी अग्निहोत्र को हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इंड्यूस किया था और डाला था कि हम ये इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में किया करें। कपूर जलाना ये एक छोटा सा इसका रूप आप कह सकते हैं। कपूर इज ऑल्सो हैविंग अ मेडिसिनल वैल्यू ऑफ हाई क्वालिटी। तो यह है शौच। आप अपने आप को तो क्लीन कर ही रहे हैं, मगर आप अपनी आसपास की वनस्पति, पशु पक्षी, आप पर उनका भी दायित्व है। प्लीज बी एम्पैथेटिक टू देम। तो इन यज्ञों द्वारा, इन अग्निहोत्र द्वारा आप अपने आसपास को भी कृतार्थ करते थे। आप उनके लिए भी कुछ ऐसा करते थे जिससे उनका शौच हो, क्लेंजिंग हो, क्लीनिंग हो, अच्छी वायु में सब श्वास लें। छठा जो धर्म का लक्षण बताया गया वह बताया गया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करके वासनाओं से बचना। फॉर व्हाट टाइम वी आर लुकिंग एट द नेटफ्लिक्स में हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, अपनी आंखों को आप बता सकें, वो आपके कंट्रोल में हो। आपको जीभ में पता हो कि भैया ज्यादा टेस्ट या ज्यादा तीखी या ज्यादा तेल वाली मसालेदार चीजें न खाएं, क्योंकि ये जाके फिर पेट में जलन ही करती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये इंद्रियों को आत्मा ही देगी अपनी बुद्धि द्वारा कि नहीं भाई ज्यादा इसमें मत जाओ। इसको छठा रूप दिया गया धर्म का लक्षण, इंद्रिय निग्रह। सातवां जो लक्षण दिया गया वह बताया गया धी। धी मतलब बुद्धिमान बनना। अब ये हम सबका, सारे मनुष्यों का यह धर्म धारण करने योग्य ये लक्षण है कि हम अपनी बुद्धि को निरंतर बढ़ाते रहें, निरंतर। अब फिर हमें जो बताया जाता है कि भाई ये पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा, और स्त्रियों के लिए ये अलग वो हैं, ये अलग पुरुषों के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं था।
वेद सबके लिए विद्या का पाठ और विद्या द्वारा अपने आप को अपग्रेड करना, बुद्धिमान बनना, यह हमारे बेसिक्स थे। ये तो लास्ट 1000 years 1400 years का जो हम पर गुलामी रही, और जो लास्ट 200 में मैक्स मूलर और ये मैकेले ने जो विभ्रश किया, इस वजह से आज हम इन क्वेश्चंस को उठाते हैं अपने ओन सिविलाइजेशन पे कि कन्याएं जो होती हैं या जो स्त्रियां होते हैं वो अग्नि नहीं दे सकती हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह से अगर देखा जाए कि अग्नि अगर स्त्री नहीं देगी अपने अंतिम समय पे, अगर मृत्यु शैया पे लेटे हुए इंसान को सिर्फ पुत्र ही देगा, ये कितनी गलत धारणाएं बताई गई थी, बिल्कुल विपरीत हैं ये वेदों के। इस तरह से देखा जाए तो जो अनमैरिड रहते हैं या जो शिक्षक हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो संत हैं, जो मुनि हैं, जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान के लिए झोंक दिया है, फिर उनकी जब मृत्यु शैया है उस पर अग्नि उनका ना बेटा दे सकता है ना बेटी दे सकती है, फिर कौन देगा? उनके जो विद्यार्थी होते हैं वो देते हैं। इसलिए ये जो मिथ्या है कि सिर्फ कन्याएं मतलब सिर्फ जो पुत्र होंगे वही लाश को देंगे और वह फिर मोक्ष को प्राप्त होंगी, बिल्कुल ये पाखंड है। इट्स अ बेसिक साइंस कि किसी की मृत्यु हुई है, जो उसके क्लोज वन है वो दे सकता है। विद्या का दूर रहना कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं है एंड ऑल, ये कहाँ से आया? ये पिछले 1000 years को आप देख के कहते हैं कि ये वैदिक सिविलाइजेशन है, ये इंडियन सिविलाइजेशन है। संस्कृत का जो उत्पत्ति है वो आपको मैं कोट करके दूंगी, वर्ड्स नंबर्स दूंगी ईयर्स के, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हमारे यहाँ जो किसान हुआ करता था आज से लाखों वर्ष पूर्व, जो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन समझाई है, इसमें क्लियरली होता है कि द्वापर युग के अंत में राम जी का जन्म, श्री रामचंद्र जी का जन्म बताया गया है उसी संकल्प पाठ द्वारा। पुरोहित ने संकल्प पाठ पढ़ा होगा और उसको रेखांकित कर दिया, उसको अंकित कर दिया गया कि श्री रामचंद्र जी का जन्म इस तिथि, इस वासर, इस नक्षत्र में, इस संवत्सर में हुआ था। इसकी कैलकुलेशन आप लगाएं तो एग्जैक्टली 9 lakh years ago there was this end of द्वापर युग, जहां पे श्री रामचंद्र जी रहे थे। यही एग्जैक्ट अगर आप टाइम की जो काल गणना इसको फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि जो महाभारत है वह आज से 5128 वर्ष पूर्ण हुई थी, क्योंकि महाभारत का जो वक्त था, जो समय था, कालखंड था, वो श्री कृष्ण जी के जन्म और मृत्यु से जोड़ा जाता है। और वे अपनी मृत्यु को 175 साल की आयु में प्राप्त हुए थे, क्योंकि वो इतने गूढ़ अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले इतने योगीचार्य थे, उन्होंने अपने जीवन को इतनी शुद्धता से जिया था कि वो 175 years तक जी पाए, और उनकी मृत्यु के बाद से ही ये कलयुग की शुरुआत होती है। ये हमने सुना है, हमारे बड़े ये कहते हैं। अब देखिए, आप अगर ये कालखंड जानते हैं तो आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ सुन रहे हैं, आप उसको बिंदुओं के द्वारा उस एक सीरीज में टाइम फ्रेम की जोड़ सकते हैं। जैसे सतयुग में हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सुनाई जाती तो हमें लगता है ये मिथ है, इट्स अ स्टोरी। नो, इट इज नॉट। ये इक्ष्वाकु वंश के इसी मनवंतर के 28th चतुर्युग के सतयुग में जन्मे हुए एक ऐसे प्रकांड विद्वान और शूरवीर राजा हुए थे कि जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का लोहा सबसे मनवा दिया था। ये इसी सतयुग में हुए हैं। हमारे जिस युग में हम चतुर्युग में अभी हैं, द्वापर में मैंने आपको बताया श्री रामचंद्र जी की रामायण है, और अभी मैंने आपको बताया ये महाभारत है जो 5128 वर्ष पुरानी है। तो आप इन कड़ियों को इस टाइमलाइन के द्वारा जोड़ सकते हैं, और इन्हीं बुद्धिमान, हमें जो अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी है, जो 7वां गुण है, वह इन्हीं चीजों को जानकर इस लीनियर इक्वेशन में पुट करके हमें अब देखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन मुझे बहुत रहता था कि भाई ये कब आई, महाभारत के पहले आई, महाभारत के बाद में आई, क्या तथ्य हैं इसके? तो यह 4000 वर्ष पहले आई। आप एक्सप्लोर कीजिए। इवन नाउ द बिग रिसर्च फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड आर करेक्टिंग देयर नंबर्स। यूएस में एक जो एस्कवेटर है, उसको एक 13 लाख वर्ष पुराना ह्यूमन, जो कहते हैं ना मनुष्य का जबड़ा मिला है। उसकी वो कैलकुलेशंस डगमगा गई कि भाई होमो सैपियंस जो हुआ करते थे वो 6000 साल पहले के थे, नहीं, वो 13 लाख वर्ष। अब देखिए घूमते घूमते आएगा उसी पर 1,96,00,000,000 पर। अब वो चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे कि नहीं, वी आर एक्सप्लोरिंग मोर, क्योंकि वो जबड़ा बिल्कुल होमो सैपियंस जैसा है, वो इनके जैसा नहीं है जैसे कहते हैं एप से हम बने थे। सो दीज थिंग्स विच
इवॉल्व यू एंड योर ब्रेन, आपकी सोचने समझने की क्षमता है, यह एक धर्म का लक्षण है कि इसको निरंतर बढ़ाते रहिए। सबको जिज्ञासु बनाइए, जानने की चेष्टा हो, जो हमें पढ़ा दिया गया उस पे तर्क करने की शक्ति हो, शुद्ध विद्याओं का हमारे पास एक्सेस हो, हमें मिले। आप नहीं पढ़ पाए, आप किसी और को दीजिए। इसीलिए मैं इतने पैशन से आई एम स्पीकिंग टुडे कि जो भी मुझे पास थोड़ा बहुत मुझे मिला है इतने बड़े पूल में से, मैं वो आज आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि हम किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पर इसका फायदा उठाएं, अपने आप को बेटर बनाएं। 8वें इस पर आते हैं विद्या। विद्या का अर्थ है, जो ये धर्म का लक्षण है, सत्य विद्याओं का पठन पाठन। क्योंकि मनुष्य जो है वो बिना सिखाए कुछ नहीं सीख सकता। मैं फिर से रिपीट करूंगी, मनुष्य जो है वह बिना सिखाए पढ़ाए या बिना ऑब्जर्व किए वह कुछ नहीं सीख सकता। इसका एक एक्सपेरिमेंट काफी समय हमारे ऋषियों मुनियों में भी किया, बट मैं आपको जो कोट करूंगी वो अकबर के ड्यूरेशन का करूंगी। उसको जब ये वेद विद्या बताई गई कि भाई मनुष्य कुछ नहीं सीख सकता है बिना पढ़ाए या बिना किए, ये गुरुकुल पद्धतियां बहुत जरूरी हैं, पठन पाठन होते रहना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं एक नवजात शिशु को 4 डेफ एंड डम लेडीज के साथ एक जंगल के किसी एक क्षेत्र में उसको थोड़ा संरक्षित कर उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर मैं इसके साथ भेज देता हूं, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या क्या सीखता है और क्या क्या नहीं सीखता। बिकॉज द लेडीज वर डेफ एंड डम, तो वो ना बोल सकती हैं ना वो सुन सकती है। बच्चा बड़ा हुआ, बढ़ता गया। 1-2 बकरियां भी बांधी गई ताकि उसकी जो दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वो पूर्ण होती रहे। वहां पर फलों और सब्जियों का भी प्रावधान था। जब बच्चा 12 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, आप हैरान रह जाएंगे इस आउटकम को जान के कि वो बकरी की आवाज निकाला करता था, मैं ऐसे करके। मतलब उसको भाषा नहीं पता थी, उसे ज्ञान नहीं था अभिव्यक्ति का कि क्या बोलना है, सुनकर किस तरह से इंटरप्रेट करना है। सो हम सबका ये बहुत बड़ा ऋण है अपने गुरुओं के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, कि जहां ये बोलचाल की जो भाषा थी, ये हमने जब हम छोटे से थे, 2 महीने के, 3 महीने के, हमने ये सीखी। Whatever language we were into, हम मलयाली में बोला करते थे या किसी में भी जब हम अभिव्यक्ति कर रहे थे, पठन पाठन कर रहे थे, ये हम पे ऋण है। अगर हम उस जंगल में होते, जंगल बुक आपने स्टोरी सुनी होगी, तो वो खाना नहीं जानता है, वो पचाना भी बड़ा उसके लिए बड़ा विचित्र सा है, क्लॉज आगे हो गए हैं, वह उसका बुद्धि विवेचन इस तरह का नहीं रहा। अब ये देखिए कि जब मनुष्य इतना डिपेंडेंट है तो हम कितने ज्यादा हमें कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए टू आवर सराउंडिंग्स, टू आवर ऋषिज, मुनीज, एक्सप्लोरर्स, थिंकर्स, जितने भी हुए। अब्दुल कलाम जी ने जो रिसर्च की है साइंस, स्पेस साइंस को लेकर, हमें इनके लिए बिल्कुल बाउ डाउन करना चाहिए। विद्या का मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि ये जो विद्या अच्छे पठन पाठन से हुआ करती थी, यह बहुत समय से हमारे साथ थी, और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जो हम आज देख रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा पास्ट में हुआ है, ये हो चुका है। आपने सुना भी होगा कि रामायण काल में पुष्पक विमान हुआ करते थे। इट वॉज अ टाइम व्हेन एवरीवन हैड अ एयरशिप विद देम। उन्हें कहीं जाना होता था तो वो अपनी एयरशिप निकाल के फिर जाया करते थे, क्योंकि वेदों में ये जान दिया हुआ है कि आप इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर जो वेदों में दिए गए हैं, यान शास्त्र पर, वेदों में 128 फॉर्मूलाज से ज्यादा फॉर्मूलाज लगभग इसके करीब दिए हुए हैं श्लोकों द्वारा। 128 श्लोकों द्वारा यान विद्या बताई गई है। इसी यान विद्या को पढ़ते पढ़ते महर्षि भारद्वाज, जो हमारे पुराने महर्षि हुए, उन्होंने विमान शास्त्र की रचना की। इन्हीं जो वन बेसिक में आपको 128 जो सूत्र बता रही हूँ, उन्होंने वेदों से पढ़े, ऋग्वेद में इनका वर्णन है। Whoever wants to get access to them can explore. इन्होंने विमान शास्त्र की रचना की। अब आप जो मैं नंबर्स बता रही हूँ वो आपके ब्रेन के लेवल को कहाँ लेकर जाएगा, और आप देखेंगे कि साइंस जो आज है वो कितना माइन्यूट लेवल है, जबकि हमारे पास आज सब कुछ है। हमारे हैंडफोन में everything of our pleasure, of our betterment is available. But just see the science in our ancient times, how well it was developed, कि विमान शास्त्र में
500 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं श्लोकों द्वारा ऑफ प्रिपेयरिंग एयरशिप्स एंड एरोप्लेन्स. And when I talk formula, I use this word very responsibly because this is just a formula. आप फॉर्मूला पे कितनी सारी चीजें कैसे डिराइव कर सकते हो ये आपको और मुझे भी पता है. एक फॉर्मूला होता है, उस पे आप कितनी पद्धतियों से अराइव कर सकते हो अपने डेस्टिनेशन को. तो 500 फॉर्मूलेज फॉर द एयरशिप्स हैं, 500 फॉर्मूलेज फॉर प्रिपेयरिंग एरोप्लेन्स हैं, और हर फॉर्मूला का 32 वेरिएशन है, 32 टाइप्स है विमान शास्त्र में कि आप इस फॉर्मूला पे 32 तरह से इस विमान की रचना कर सकते हैं. यह महर्षि भारद्वाज ने आपको विमान शास्त्र में समझा दिया है, बता दिया है. अब आपको मैं एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस बताऊंगी. इसी विमान शास्त्र को पढ़ते पढ़ते हमारे अभी लेटली, अभी जैसे आप इसका मैं टाइम फ्रेम दूंगी, 1896 में शिवकर बापूजी तलपड़े करके इंडियन साइंटिस्ट हुए जो वैदिक विद्या से बहुत ओतप्रोत थे. उन्होंने महर्षि भारद्वाज के इस विमान शास्त्र को बहुत डिटेल में पढ़ा, संस्कृत वो बहुत अच्छी जानते थे. उन्होंने एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंट की और उन्होंने बनाई भी जिसका नाम उन्होंने रखा मरुत सखा. मरुत सखा 2 शब्दों से बना है. मरुत मतलब हवा, सखा मतलब फ्रेंड, मित्र. तो उड़ने वाला वो एयरशिप था, एरोप्लेन था मरुत सखा, जो किस कॉन्सेप्ट पे था? बांस के द्वारा उसकी बॉडी बनाई गई थी लाइट वेट के लिए, और उसे लिक्विड मर्करी एज अ फ्यूल रखा गया था. अब सब आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि जो लिक्विड मर्करी पे दिन में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो पिघलती है, वो थोड़ा सा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एंड हाइड्रोजन गैस इज वेरी लाइट इन नेचर. तो उनका जो एयरशिप था वह ऊपर उठा. ये मैं आपको बात बता रही हूं 1896 की. ये एक्सपेरिमेंट जब हो रहा है, यह चौपाटी के तट पर हो रहा है मुंबई में, जिसमें स्वयं शिवकर बापूजी तलपड़े हैं. काफी जो आसपास की रियासतें थी उनके राजा महाराजा आए हुए हैं. देयर आर स्कॉलर्स, देयर आर टीचर्स बिकॉज ही वाज अ वेरी रिनाउंड टीचर ऑफ अ यूनिवर्सिटी. तो उनके जो साथ के कलीग्स थे और बच्चे थे वो भी आए हुए हैं. इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. क्राफ्ट ऊपर बढ़ा है जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ी हैं. इसने फ्लाइट ली है, ये चला है और इसने एक सक्सेसफुल लैंडिंग की है. 1896 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसके सारे दस्तावेज, क्योंकि आज आप और हम अपने वैदिक सिद्धांतों पे गर्व कर रहे हैं, इनके बारे में बातें कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो यह तथ्य धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं. थैंक्स टू IT and to my friends and colleagues and people around the world who's into this information technology, कि आज वो इस ज्ञान को जान पा रहे हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बापूजी शिवकर तलपड़े की जो रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कंपनी है उसके म्यूजियम में रखे हुए हैं. आप में से कोई भी जाकर इन्हें देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है. और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये जो उनसे चुराए गए थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश एरा था, उनकी जब बहुत ज्यादा वाहवाह हुई, पता चला कि भाई ये क्या चीज है, लोगों को तो पहले यकीन ही नहीं आया. इस समय से पहले कोई जानता भी नहीं था कि हम उड़ सकते हैं, मनुष्य उड़ सकता है. फिर ये जो फॉर्मूलाज हैं ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में पहुंचे, वहां से इनकी तस्करी हुई और फिर ये अमेरिका गए. और फिर इस समय से 1896 के 8 साल बाद राइट ब्रदर्स ने एक प्लेन, छोटा प्लेन क्राफ्ट बनाया, कैरोलिना के तट पर उसे उड़ाया, जिसने टेक ऑफ तो किया बट लैंडिंग ठीक से नहीं कर पाया और चरमरा कर गिर गया. मगर आज मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, तो वो पढ़ेगा राइट ब्रदर्स इन 1906. Such an unfortunate part, but still I am very optimistic. As I mentioned, we are now open to Pandora of thoughts. हमें ये सारी यूनिवर्सिटी का ये दायित्व होता है कि इन विद्याओं को पढ़कर एक एक श्लोक भी अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में उठाया, उस पर एक्सप्लोरेशन होंगी एंड साइंस विल टेक यू फार बेटर. तो यह था विद्या, जो धर्म का 8वां लक्षण था कि इस विद्या की प्राप्ति एक धर्म का लक्षण है. जो आदमी इस विद्या के लिए
निरंतर मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, वह धार्मिक है। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, वेर एवर यू गो, विच एवर रिलीजन यू आर बोर्न इन, इट इज एप्लीकेबल फॉर यू। ये धर्म का एक लक्षण है। नवा लक्षण आता है सत्य। सत्य मतलब मन वाचा कर्म से एक होकर सच का साथ देना। आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप अपने मित्र को कुछ और कह रहे हैं, ये धर्म का लक्षण नहीं। आप कह कुछ रहे हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं, यह धर्म का लक्षण नहीं है, आप सत्य नहीं है। If I know using plastic is so harmful for the environment, if I'm burning a plastic, it is giving carbon monoxide and so many harmful gases in the environment, and I am not applying it in my house or day-to-day activities. मैं प्लास्टिक को निरंतर इस्तेमाल कर रही हूँ ये जानते हुए कि वो इतनी हार्मफुल है, यह मैं अधर्म कर रही हूँ, यह मैं असत्य कर रही हूँ। क्योंकि जो विद्या मेरे पास है मैंने उसको आचरण में नहीं डाला है, मेरा मन जानता है बट मैं इसे प्रैक्टिस में नहीं ला रही हूँ। सो विद्या का जो ज्ञान अर्जित करना है ये एक सेगमेंट है, और इसको अपने जीवन में ढालना, आचरण में ढालना, ये अलग है। क्योंकि आचरण में डाले बिना इट विल नॉट बेनिफिट यू, इट विल नॉट एट ऑल। सो यह था सत्य। धर्म का एक 10वां लक्षण जो बताया गया वह है अक्रोध। अक्रोध मतलब ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है। जलन, ईर्ष्या, क्रोध आना, रोना, ये सब ह्यूमन ट्रेट्स हैं, हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। एंड बीइंग अ लेडी आई जस्ट लव दीज इमोशंस। ये होने चाहिए, आने चाहिए आपके अंदर। आप में अगर नहीं आ रहे तो आप मनुष्य नहीं। अगर किसी स्त्री का तिरस्कार हो रहा है आपके सामने और आप में अगर क्रोध नहीं आ रहा तो आप मनुष्य नहीं है। क्रोध आना चाहिए, मगर क्रोध को वश में करना ही अक्रोध है। अक्रोध की इतनी सुंदर व्याख्या महर्षि मनु ने बताई है कि क्रोध आ रहा है मगर आप उसको वश में कर रहे हैं और बुद्धि को संकेत दे रहे हैं कि अगर इस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और मैं इतना बलवान नहीं हूं कि मैं इसको बचा सकता हूं, तो एटलीस्ट मेरे पास जो गैजेट्स हैं मैं उनके द्वारा, जो कार्यालय हैं जो इनको देखते हैं या जो एजेंसीज हैं इनको कम कर सकती हैं, मैं उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करूं। या मेरा एक सहयोगी ग्रुप है जो काफी बलवान है, एक बगल में जिम है, मैं उनको कह दूं कि भाई साहब इस तरह का हो रहा है। ये आपको जो आपका ज्ञान है ना, जो आपकी आत्मा, प्रबुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध है, जो किसी लेघ में, किसी लोप में, किसी इसको आप कह लो कि छल में, कपट में, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है ना, तो आपको ये आत्मा से सॉल्यूशंस तुरंत मिल जाते हैं। 2 तो मैंने आपको खुद ही बताया कि मैं तुरंत इन्फॉर्म करूंगी कार्यालय को। दूसरा बताया मैं तुरंत इन्फॉर्म करूंगी आसपास का कोई जिम है या बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज है उनको। तीसरा, अगर मैं खुद बलवान होंगी तो मैं उसे टॉर्चर मतलब उसको मैं वार्न कर दूंगी कि आपकी मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट ये देखते हुए कि माहौल कैसा है। और फिर मैं तुरंत आके पुलिस को फोन करूंगी, मैं खुद भी ये कर सकती हूँ। तो ये जो शुद्ध आत्मा होती है, प्रबल आत्मा जो होती है, जो सत्य के प्रति अग्रसर है, जो अच्छा करना चाहती है, न सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास के लिए, उसे ये क्लियर मैसेजेस मिलते हैं। यही वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारी अंतरात्मा में आते हैं, उठते हैं, हम उन्हें दबा देते हैं कि चलो भाई काम पे लग जाते हैं। और ये साक्षात्कार जब हम कर नहीं पाते तो ये क्लियर मैसेजेस हमें मिल नहीं पाते, और फिर हम जीवन में इस तरह से हो जाते हैं कि रथ कहीं और दौड़ रहा है, आत्मा को कहीं और जाना है, और फिर डिप्रेशन, सुसाइड्स एंड देन परेशानियां, क्या है, कितना बुरा हो रहा है। ये बहुत इरिटेटिंग ब्रीड है जो कह रही है यार क्या हो रहा है, सब ऐसा हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बहुत इरिटेटिंग ब्रीड है। आप अपने आप पर अधिकार लीजिए, आप अपने आप में कंट्रोल लीजिए, एंड देन स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन। तो यह अक्रोध की परिभाषा बताई उन्होंने कि क्रोध को वश में करना, इन 10 नियमों का पालन करना धर्म है। यही धर्म के लक्षण है। यदि ये गुण या लक्षण किसी भी व्यक्ति में हैं तो वह धार्मिक है। इन्हीं सारी इंफॉर्मेशंस के बाद जो थोड़ा भी बहुत कुछ मैं पढ़ पाई, मैं आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। आशा है आप इसे जानकर, इस पे और शोध कर इसे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मिलाकर एक प्रबल आचरण में लाएंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में लाएंगे, और भारत को एक प्रबल देश बनाएंगे जिसकी तरफ टकटकी लगाए पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस साइंटिफिक नॉलेज की जो रूट्स हैं वो हमारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन में है। It is just we have to revive these through these talking sessions
and important discussions. Thank you very much. Thank you very much for patiently listening. मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम. मैम हम अभी पोल क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? Sure, please. विक्की सर. Okay, ma'am. हाँ. पहला poll launch करता हूँ. Okay. Participants, please note a poll has been launched on your chat screen on your window. And the first question says that how long it has been since this universe is created. You may please click on the answers which you feel is the correct one. I request all the participants to please attend the poll. Ma'am, मैं end करता हूँ poll. And I'm sharing the results. Ma'am, as you can see, 88% of them has answered the first option. Some of them have answered as the C option. Now I'm sharing the second question. Request to participants to please answer this one as well. Who did harmful adulteration in Vedic knowledge in British era? And in the meantime, any participant have any doubts or any queries, you can be ready with your doubts and your queries. And after the poll session, we will be continuing with the question and answer session. If any doubts and queries from your side, you can please put up your doubts in front of the ma'am. Vicky sir, unmute yourself. Now I am putting up the third question. Now I have entered this poll and the result says that maximum of them has answered for the first option, that is yog is the process of reducing vritti. And I'm sure that participants are correct to an extent.
Now I am putting up the fourth question. What is the Nachiketa's third and most important wish that he asked Yamacharya to bless him with? Participants, please answer. Maximum of them has answered, so I am ending the poll now. Now I request participants, if there are any doubts or any queries, you can please put up your questions. Ma'am, one question I can see in the chat box. Dr. Arun Kumar has wrote a question that please repeat the section of Dharma only name. Sorry, can you repeat? Dr. Arun Kumar has put up a question and it says that please repeat about the Dharma only name. Dharma only? Name. He has written that kind of something. Dharma only name. I didn't get the question correctly. विक्की सर अगर सर प्रेजेंट हैं तो Sir, उनको if you are there, you can please अनम्यूट unmute होकर yourself and आप अपना question पूछ सकते हैं. Yes, good afternoon. I'm not able to get your question. Team members. Yes, good afternoon, ma'am. नमस्कार. नमस्कार मैम. मैं एक्चुअली बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से पॉइंट नोट नहीं कर पाया. जो धर्म के आपने पार्ट्स डिवाइडेड किए थे तो वो मेरे से मिस हो गए, तो प्लीज मैं उनको चाहता हूँ कि आप उनको रिपीट कर दें एक बार, जो आपने धर्म के सेक्शंस बताए. वैसे आप परेशान ना हो. आई थिंक विक्टर इज रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड दिस इज लाइव ऑल्सो, आई हैव बीन टोल्ड, सो इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब. क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये 10 लक्षण बताऊंगी तो जिस खूबसूरती से मैंने आपको वो बताने की चेष्टा की आप सब लोगों को, वो रह जाएगी. मगर आप फिर भी अगर चाहते हैं ये 10 लक्षण मैं आपको वर्ड्स में बता देती हूँ. पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा शौच, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां धी, आठवां विद्या, नवा सत्य और 10वां अक्रोध. Thank you, ma'am. The recording for the whole session will be available on YouTube, so participants may please watch it back if you wish. Thank you. Any other doubt or queries from any of our participants? Dr. Saurabh Jain has also unmuted himself. Sir, if you have any doubt, you can please ask. Participants may also write in the chat box if any queries or doubts you want to put up. नमस्कार मैडम. जैसे आपने ये 10 धर्म के लक्षण बताए, ऐसे ही सेम लक्षण हमारे यहाँ भी बताए गए हैं. उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य. तो इनका और आपने जो बताया इनमें कोई कोरिलेशन और ऐसा कुछ है क्या? जी, ये एक्चुअली जब आपने शब्दों को बोला ये ऑलमोस्ट द सेम है. मैंने हर चीज, जैसे ब्रह्मचर्य को मैंने देखा तो वो इंद्रिय निग्रह और इनसे बिल्कुल मैच खा रहे हैं. और ये मैंने जैसे आपको बताया एंशिएंट जो वैदिक है ये उसी से प्रवाह होते होते फिर स्ट्रीम्स में बटी हैं बाकी जो धारणाएं हैं. किसी को कुछ अच्छा लगा, जैसे मान लीजिए जो बौद्धिक विचारधारा है वह परित्याग को एक बहुत एपिटोम, उसमें सारा पूल था, उन्होंने इस चीज को लेकर मनुष्यता को निखारा है. ये उनका बड़ा कहना चाहिए कि हम पर बड़ा उपकार है कि उन्होंने एक ट्रेट को लिया और उस पे शोध किया.
सो ये जो वैदिक नॉलेज है, ये आपको इमेंस पॉसिबिलिटीज देता है. व्हाटएवर आदमी, जो मनुष्य है, वो अपनी बुद्धि के स्तर से इनको पिक करता है, एक्सप्लोर करता है और फिर जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समाज को बांटता है. सो जो आपने बताया ये लगभग सेम ही है और ये इनसे डिराइव्ड है और आगे भी इन पे शोध होते रहेंगे, तो देखिएगा कुछ नई चीजें भी निकल कर आएंगी, मगर होंगी ये इन्हीं 10 के अंदर. आप कुछ भी नया देखेंगे वो इनसे मेल जोल खाता होगा. क्यों? इसका रीजन है कि ये है ही मनुष्य के लिए. मनुष्य वही रहा है जब से उसकी उत्पत्ति हुई है. I have not seen a single instance in the entire history of human civilization when a male has given birth to a baby. तो हम जो मनुष्य हैं वो हम सदैव से ऐसे ही रहे हैं. कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि किसी ने ये पकड़ा हो कि भाई पाम से दिखने लगा है या पैरों से दिखने लगा है, फुट से, स्किन से दिखने लगा है. तो जो हमारी ट्रेट्स हैं ये कॉमन रहे हैं मनुष्यों के लिए. यही जो विचारधाराएं हैं ये कहीं घूम फिर के आप कान इधर से पकड़िए वाली स्थिति है. सो ये बिल्कुल इससे मैच खाते हैं. ठीक है, थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Any other questions or doubts from any of our participants? You may also type your question in the chat box, or you can unmute yourself and ask your question. Anyone? विकी सर, Yes, ma'am. जस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए, डायरेक्टर सर भी हैं. सर वांट Yes, टू ma'am. से समथिंग. Yes, ma'am. Director sir is also there with us. And now I would like to request our director sir to please say a few words. Thank you, Vicky. Please. Thank you very much, ma'am, for your excellent lecture. We have gained a lot of knowledge about the things, and I will again multiple times I will listen your lecture that we have recorded, because so many things is very important that if we will not repeat it, it is unable to remember or unable to recognize the things. Thank you very much, ma'am, for being present, being given your valuable time for our participants. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ma'am, on behalf of the Sage Group and the Society Pharmacy, I would also like to present before you a token of appreciation in the form of the certificate, ma'am, which is displayed on our screen. Ma'am, please accept this for your sincere efforts. Thank you so much, ma'am. We are really grateful that you delivered such a great session with all of our participants. Thank you so much, ma'am. Priyanka, ma'am. Yes, Vicky sir. Thank you so much, ma'am, for sharing such a wonderful and informative knowledge with us in your session. And you are efficiently, during your session, you efficiently connect our spirit, the purity of the spirit, with our entire body, with the entire human body. That's amazing. And thank you so much for providing us such an informative knowledge about our traditional treasure, that is our Vedas, and that how our Vedas are having the importance and induced in our day-to-day life activities. We should proud that we belong to such a Indian civilization. हमारे धरोहर जो धर्म है, जो धरोहर है, जिससे सभी तरह की ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, जो हमारे वाकई में हमारी तीनों चीजें मीन्स लाइक और बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को जो जितने अच्छी तरीके से बैलेंस्ड करती हैं, जितने अच्छे से उन्हें कोऑर्डिनेट करती, कोरिलेट करती है, ये शायद किसी और सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है. और आपने इसे इतनी ब्यूटीफुली से एक्सप्लेन किया, इतने अद्भुत तरीके से आपने हमें धर्म के सारे जो लक्षणों से अवगत कराया, तो वाकई में काफी सराहनीय था. और यज्ञ जो कि हम करते रहते हैं, यज्ञ सभी करते हैं, लेकिन उसको इतने ज्यादा एफिशिएंटली उसे सोचना और उस पर वाकई में जो फॉरेन कंट्रीज में उसके लिए उसको लेकर जो रिसर्च चल रही है, मतलब इतना आगे पहुंच गया है हमारा धर्म और हमारी ये सारी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं लाइक यज्ञ, जिसपे फॉरेन कंट्रीज में भी जो रिसर्च चल रही है, और इन सारी एक्टिविटीज को इतने अच्छी तरीके से आपने साइंटिफिकली ह्यूमन वैल्यूज के साथ जोड़ा, हमारे मोरल्स के साथ, एथिक्स के साथ,
बिहेवियरल साइंसेस ह्यूमन के एटीट्यूड के साथ जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने से कोरिलेट किया, के लिए थैंक यू सो मच. एंड वी ऑल आर लेफ्ट बिहाइंड विद अ क्वेश्चन दैट व्हाट अबाउट अस, क्योंकि सारी रिसर्च बाहर की कंट्रीज में हो रही है और हमारी कंट्री में इन सारी रिसर्च को लेके आपने सच में हमारी ये जो जनरेशन है इसमें कुछ न्यू आइडियाज, कुछ न्यू अवेयरनेस, न्यू नॉलेज सभी में थोड़ी बहुत इनकलकेट की है. मेरे ख्याल से सारे ही पार्टिसिपेंट्स इससे एग्री करेंगे कि हम लोग भी अब लुक फॉरवर्ड करें इन सारी चीजों को अपने रिसर्च और टूल्स में इसे यूज करने के लिए. सो थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच फॉर सच अ अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन. थैंक यू सो मच मैम. और मैम हम आगे भी आपको ऐसे ही सुनना चाहेंगे. It will be my pleasure, honestly. Thank you so much, ma'am, for sharing Thank you, such a ma'am. valuable information. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Vicky sir, Now, participants को आप second उसके लिए. Now, I would like to inform our participants that our next lecture will be conducted by Professor Vineet Sidoti, sir, and it will be on the topic Attitude Really Matters. So, I kindly request all the participants to please join us back sharp at 2:25, and we will begin our lecture soon after that. So, I kindly request all the participants to that you can take a lunch break and you may join us back sharp at 2:25, and we will be conducting our next lecture by Professor Vineet Sidoti, sir. So, thank you so much all the participants for patiently listening to the great lecture by Alka ma'am, and I hope that all of you might be thrilled by this great lecture, and hope that all of you will incorporate her teachings and try to research based on whatever ma'am has taught us today. Thank you so much all the participants for joining us. We'll see you soon at 2:25. Thank you so much. Thank you all the participants for joining. Now we will begin our lecture sharp at 2:25. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.